Is screen visible to you? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Okay, okay, okay. Yes, sir. Yes, So sir. already we have started chapter number 7, that is learning. So in yesterday's lecture we have seen what is machine learning, the concept of learning, how that particular machines or a particular human being can learn. There are different method, or you can say there is the classification of learning. The three classification of learning, that is supervised learning, unsupervised learning, and semi supervised learning. So to learn by using this particular classification, that is supervised learning, unsupervised learning, and semi supervised learning, there are different type of algorithm. By using that particular algorithm, by developing that particular algorithm, your machine or computer will gain knowledge or learn the experience or get the experience, and uh, have a expertise in that particular field. So there are different algorithms. If you want your machine to learn something, if you want your machine will learn in a supervised learning, for that purpose you have to develop supervised learning algorithm. Supervised learning algorithm. So by using this algorithm, your machine will learn. Your machine will learn and give you the output. If new input you given to that particular machine, you will get the output. That is supervised learning algorithm. If you want your machine will learn through the unsupervised learning method, so for that purpose you have to develop unsupervised learning algorithm. So by using that algorithm, your machine will get the information, get the knowledge, and give you the output. If new data you have given to that particular machine, it will learn through that particular data, and it will give you the output. So in yesterday's lecture we have seen the supervised learning. So in supervised learning, there is a training data. You have to give the training data. Training data means what? कौन बताता है मुझे? What is mean by training data? Yes, जयश्री, माहेश्वरी, इशिता, सुचिता किधर गई? सुचिता इज, सुचिता थी ना? यस, इशिता, व्हाट इज ट्रेनिंग डेटा? इट इज हमको उसका इनपुट भी पता रहता है और आउटपुट भी, और उसका सॉल्यूशन भी पता रहता है। ओके, और हम क्यों देते हैं वो ट्रेनिंग डेटा? फॉर व्हाट पर्पज वी हैव दैट डेटा? क्या यूज है उसका? Yes. To check whether the information is correct or not. To check whether the information is correct or not. नहीं 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 नहीं। जब हम अभी ये हम क्यों कर रहे हैं? सुपरवाइज लर्निंग मीन्स व्हाट? हम ये डेटा किसको देंगे? मशीन को देंगे। उसका एक अल्गोरिथम क्या करेंगे? डेवलप करेंगे। वो अल्गोरिथम मशीन को देंगे, एंड उस अल्गोरिथम से ही मशीन क्या करेगा? मशीन लर्न करते रहेगा और हमें आउटपुट देता रहेगा. मशीन विल expertise in that particular domain, and if we give new input
whose output is not known to us, at that time that machine will tell the output of that particular new data. Understood? ये टॉपिक समझ में आता है क्या आपको? मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग हमें क्या करना है, मशीन को क्या करना है, एक्सपर्ट बनाना है ताकि वो हमें आउटपुट दे। हमने कुछ डेटा उसको दिया तो उसने हमें आउटपुट देना चाहिए। अभी मशीन कैसे लर्न करेंगी, मशीन को नॉलेज कैसे आएगा? पहले हमें उसको डेटा देना पड़ेगा, जिसका आई एम टॉकिंग अबाउट द सुपरवाइज लर्निंग। तो सुपरवाइज लर्निंग में जिसका इनपुट भी पता है हमको और प्रोसेस होने के बाद उसका आउटपुट क्या है वो हमें उसको देना पड़ेगा। सो वी हैव टू गिव द ट्रेनिंग डेटा, मीन्स डेटाबेस में उसके पास डेटा है जिसका इनपुट भी उसको पता है, आउटपुट भी पता है। इस डेटा से वो क्या करेगा, इट विल मेक अ मॉडल, इट विल मेक अ मॉडल। वो क्या करेगा, मॉडल बनाएगा। और जैसे भी कुछ नया डेटा आता है जिसका आउटपुट उसको पता नहीं है, that input it will put in that particular model by using that algorithm and give you the output, and give you the output. So Naja's Bayes algorithm is used for this particular supervised learning algorithm। जैसे कि मैंने आपको कल एग्जांपल बताया था, कौन सा एग्जांपल बताया था, व्हाट वाज दैट? धनश्री, सुपरवाइज लर्निंग का इलेक्शन का बताया था मैंने आपको शायद। यस, डॉग का बताया था। नहीं, सुपरवाइज लर्निंग का इलेक्शन का बताया था ना, बीजेपी को सीट कितने आएंगे, क्या आएंगे। और डॉक्टर तो मशीन लर्निंग का जनरल एग्जांपल था, लेकिन सुपरवाइज लर्निंग डॉग का भी है सुपरवाइज लर्निंग में, इसका भी बीजेपी, कांग्रेस, इलेक्शन पोल, न्यूज़ बताते हैं हमें एग्जिट पोल क्या आएंगे, कौन सी पार्टी आएंगी, बताया था मैंने ये। तो वो कैसे करते हैं कैलकुलेट, हाउ दे नो दैट पर्टिकुलर सीट विल विन और दैट पर्टिकुलर पार्टी विल बी विन, बिकॉज वो क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास 1 लाख वोटिंग है, समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? वोटिंग पता होती है, कभी किया है आपने वोटिंग? यस सर। हाँ, मान लो कि 1 लाख वोटिंग है पूरी, और आपको ये जानना है, आपको एग्जिट पोल देना है, आप रिपोर्टर हो, आपको एग्जिट पोल देना है कि कौन चुन के आएगा, तो आप क्या करोगे बताओ? आप न्यूज़ रिपोर्टर हो, आपको पूछा कौन आ सकता है भाई, क्या किसके चांस है या किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आने की, तो आप क्या सर्वे करोगे, क्या दिमाग लगाओगे, बोलिए? जो आप आंसर देने वाली हो वो आंसर हमें मशीन से चाहिए। दैट पर्टिकुलर मशीन, दैट पर्टिकुलर कंप्यूटर विल गिव द आंसर, है क्या नहीं? पहले ये तो समझना पड़ेगा हमें, हम क्या करेंगे। तो उसी तरह से हम नॉलेज किसको देंगे, कंप्यूटर को देंगे, मशीन को देंगे, ताकि मशीन ने भी उसका जवाब देना चाहिए। तो पहले हम ये बात करते हैं कि हम इसके बारे में क्या करेंगे, हाउ वी कैन हैव दैट पर्टिकुलर एग्जिट पोल। 1 लाख है वोटिंग आपकी, और आपको प्रोबेबिलिटी बताना है या कुछ वेगली बताना है, ये सीट आ सकती है, 2 कैंडिडेट है ए एंड बी, ठीक है। पूरी टोटल वोटिंग कितनी है, 1 लाख वोटर्स है टोटल। क्या करोगे आप, कुछ डेटा तो लोगे ना मार्केट में जाके, जो वोटर है उनके पास जाके, कौन आ सकता है कौन नहीं, एम आई राइट? लोगों से पूछेगी, हाँ एनालाइज करेगी उनको क्या लगता है। हाँ, लोग कितने लोगों से पूछेंगे, 1 लाख लोगों से पूछेंगे आप, इज इट पॉसिबल? नहीं सर। हाँ, कितना लेंगे फिर आप सैंपल डेटा या ट्रेनिंग डेटा, हम उसको बोलेंगे ट्रेनिंग डेटा।
तो कितना 1 लाख पूरा वोटिंग है, तो आप कम से कम 1000 2000 5000 लोगों तो पूछेंगे कम से कम। एम आई राइट? यस सर। हाँ, जिसका इनपुट भी आपको पता है और उनके जवाब भी आपको पता है क्या नहीं? अभी सवाल ये आता है किन 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 लोगों को पूछना है। अभी हमें किसको पूछना है? यंगस्टर है उनको भी पूछना है, क्योंकि सैंपल साइज में या ट्रेनिंग डेटा में हर एंगल का आदमी आना चाहिए। मीन्स यू हैव टू थिंक 360 डिग्री, so that if you think 360 degree, your computer also think in that particular way, and that your computer or your machine will give you the answer, exact answer. अभी हमने ले लिया समझो 5000 बंदों का या 5000 लोगों का हमने सर्वे किया। तो सर्वे किन लोगों का करना है? 5000 हमें सैंपल साइज लेनी है या 10,000 हमें ट्रेनिंग डेटा लेना है? बस 10,000 लोगों को ऐसे लोग चाहिए, हर फील्ड के लोग चाहिए। मीन्स वो फार्मर भी चाहिए, कुछ ऐसे सैंपल वोटर, अगर आपके वोटर फार्मर है तो कुछ फार्मर का भी आपको ट्रेनिंग डेटा लेना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कौन आने वाला है, क्या चांसेस है, कैसे आएंगे। यंगस्टर है, यंगस्टर का भी डेटा लेना चाहिए, है क्या नहीं? बड़े बुजुर्ग है उनका भी देना चाहिए। जैसे कि मार्केट में बिजनेसमैन है उनका भी डेटा लेना चाहिए, सैलरी पर्सन है उनका भी डेटा लेना चाहिए, यंगस्टर है उनका भी डेटा लेना चाहिए। सो इफ यू गेट दिस पर्टिकुलर डेटा ऑफ 10,000 पीपल, देन यू कैन हैव एन आइडिया, है क्या नहीं? ये सारे इधर के लोग, सो आप उनका डेटा लेके उसका एनालिसिस करके आप ये कर सकते हो कि कौन आ सकता है क्या नहीं? आपके पास कितना डेटा हो गया? 5000 लोगों का, एम आई राइट? यस सर। हाँ, अभी मान लो कि आपने सैलरी पर्सन वालों को भी पूछा है कि हम उसको पूछा है भाई ये सीट कौन सा सीट आ सकता है, आपको क्या लगता है? तो वो जवाब देगा भाई वो अच्छा है, वो अच्छा काम करता है, या हमारा जो इंडस्ट्री में एमआरडीसी में जो आपको हुई इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री के लिए उनका बहुत अच्छा कुछ ऐसा योगदान है, ऐसा कुछ वो बोल सकता है। अगर नया डेटा आता है, जो आपका एनालिसिस हो गया, अगर नया डेटा आता है, नया आदमी आता है, हमें 10,000 लोगों का अपने पास डेटा है, एम आई राइट? बोलिए। यस सर। हाँ, 10,000 लोगों का डेटा है, हमने उनको क्या पूछा, और वो सारे तरह के लोग हैं, मीन्स काम वाले हैं, स्टूडेंट है, फार्मर है, सबका डेटा है। अभी हमने कंप्यूटर को, उस मशीन को या आपको भी पूछा कि ये इंडस्ट्री का आदमी है, इसका जवाब क्या होगा, तो आप बता सकती हो। क्यों? वाई? अपार्ट फ्रॉम दिस 10,000, अगर दूसरा कोई इनपुट आता है या नया बंदा आता है, अगर आपको पूछा कि इसका आंसर क्या होगा, ये इंडस्ट्री में काम को है या वो फार्मर है या वो स्टूडेंट है, इसका आंसर क्या होगा, आप दे सकती हो इसका आंसर, प्रोबेबिलिटी में बता सकती हो। एम आई राइट? एम आई राइट इशिता? यस। कैसे बता सकती हो आप? प्रोबेबिलिटी में या कुछ परसेंटेज में आप बता सकती हो उसका आंसर ये हो सकता है। क्यों? क्यों बता सकती हो आप? बिकॉज आपके पास पहले से डेटा अवेलेबल है, 10,000 लोगों का आपने स्टडी किया है, तो नया डेटा आएगा, नया पर्सन आएगा, तो उसका इनपुट भी आपको पता है, उसका आउटपुट भी आपको पता हो जाएगा ऑब्वियसली, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी वर्क ऑन अ ट्रेनिंग डेटा। एम आई राइट? यस सर। हाँ, तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं? सुपरवाइज लर्निंग करते हैं। जैसे कि 10,000 लोगों का आपको डेटा आ गया आपके पास, उसका इनपुट भी आपको पता था, कौन से क्वेश्चन पूछने वाले हैं आप, कौन से लोग हैं, उसका आंसर क्या होगा। 10,000 लोगों का पूछा आउट ऑफ 1 लाख, तो आप 90,000 वालों लोगों का आंसर क्या होगा ये आप बता सकते हो, उसका एनालिसिस कर सकते हो। सो दिस वे means you can learn, you can train your machine to learn the knowledge, to gain the experience, to gain the data in a
सुपरवाइज लर्निंग, इन द फॉर्म ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। इस तरीके से आप अपने मशीन को लर्न कर सकते हो, उस मशीन को सिखा सकते हो, उस मशीन को एक मॉडल या एक एल्गोरिथम उसको बना के दे सकते हो। क्योंकि जब नया डेटा आता है, खाली यू हैव टू पुट दैट पर्टिकुलर न्यू डेटा इनटू दैट एल्गोरिथम, यू कैन गेट द आंसर। ओके, एम आई राइट सुशिता? यस सर। हाँ, समझ में आ गया आपको? यस सर। अश्विनी, धनश्री, जयश्री, Yes, sir. इशिता, ओके। Yes, sir. So this is about the Yes, sir. supervised learning. Next, unsupervised learning. अभी अनसुपरवाइज में मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। क्या दिया था? अनसुपरवाइज लर्निंग। अभी सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, हमें इनपुट भी पता होता है, आउटपुट भी पता होता है क्या ना, क्या है आउटपुट में। तो उस तरीके से हम कुछ नया डेटा आता है तो प्रीवियस एक्सपीरियंस से या प्रीवियस ट्रेनिंग डेटा से हम क्या करेंगे, उसको एनालिसिस करके हम बता सकते हैं भाई इसका आंसर ये हो सकता है। बट इन अनसुपरवाइज लर्निंग देर इज ओनली इनपुट, उसका आउटपुट आपको पता नहीं है, देर इज ओनली इनपुट। मैंने पीके का एग्जांपल दिया था आपको, पीके पिक्चर है ना, देखा है ना आपने आमिर खान का पिक्चर पीके? यस सर। हाँ Yes, sir. हाँ, तो क्या होता है वो पीके, जब वो आता है अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, वो कहाँ से आता है? बाहर से, दुनिया से आता है। एम आई राइट? तो उसको इस दुनिया का कुछ पता नहीं होता है। एम आई राइट? यस सर। मीन्स ही डोंट Yes, sir. हैव एनी नॉलेज, वो खाली इनपुट लेता है। यहाँ इस दुनिया में ये मेल है, ये फीमेल है, या ऐसे कपड़े पहनते हैं, इनकी भाषा ये है, उसको कुछ पता नहीं रहता है। सो इट विल टेक ओनली इनपुट, इट विल टेक ओनली इनपुट। वो क्या करता है, खाली इनपुट लेता है क्या नहीं, उसको आउटपुट पता नहीं होता है ये क्या है क्या नहीं, उसको कैसे क्लासिफिकेशन करना है, उसको कैसे क्लस्टरिंग करना है। इट विल टेक ओनली इनपुट। तो वो क्या करता है, इनपुट लेता है, भाई ये इसको, इस पर्सन को मुच्छी है, इसने ऐसे शर्ट पहने हैं, इसने धोती पहनी है, तो उन सारे लोगों का वो क्या करता है, ग्रुप करता है। उसको पता नहीं ये आदमी है, मेल है, फीमेल है, तो वो क्या करता है, ये ट्राई टू क्लस्टर द सेम थिंग, मीन्स having the same characteristics. So according to that particular characteristics in unsupervised learning, they are trying to cluster, they are trying to group that particular data. जैसे कि आमिर खान ने किया था, हाँ भाई उसको पूछिए, ये इसने ऐसे ऐसे पहना है तो ये आदमी है, इसने ऊपर फेटा लगाया है, शर्ट पहना है, धोती पहनी है, तो ये आदमी है। जो लेडीज है वो साड़ी पहनती है, तो उसने ऐसा ग्रुप किया था, क्लस्टर किया था। सो इट विल टेक ओनली इनपुट, इट विल टेक ओनली इनपुट एंड अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर डेटा, अगर आपके पास ऐसा डेटा आ गया है कि नहीं, तो यू आर ट्राइंग टू क्लस्टर दैट पर्टिकुलर डेटा। आप क्या करोगे, क्लस्टर करोगे, जिस उसके कैरेक्टर के हिसाब से आप क्या करोगे, क्लस्टर करोगे, जैसे कि आमिर खान ने किया था पीके पिक्चर में। सो फॉर दैट पर्पज यू हैव, मीन्स देयर इज एग्जांपल, के मीन एल्गोरिथम इज यूज फॉर अनसुपरवाइज लर्निंग। के मीन एल्गोरिथम वहाँ पे आप यूज कर सकते हो, या यू आर ट्राइंग टू डेवलप दैट के मीन एल्गोरिथम, देन यू कैन टेक ओनली इनपुट, you don't know the output, and you are trying to cluster that particular data. So most of the learning can use this particular technique, that is clustering of data, and according to that clustering try to bifurcate the particular data. That is the unsupervised learning. इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, मशीन को ट्रेन कर सकते हो, मशीन को लर्न कर सकते हो, मशीन को एक्सपीरियंस दे सकते हो, है कि नहीं। आमिर खान जब आया था उसको कुछ पता नहीं था, बट वो क्या करते गया, ग्रुप करते गया, क्लस्टर करते गया डेटा का, और हल्लू हल्लू क्या होते गया, उसको नॉलेज आते गया।
ये आदमी है, ये मेल है, ये फीमेल है, इसे भगवान कहते हैं, है क्या नहीं? एम आई राइट? उसको कुछ पता था क्या? यस सर। उसको कुछ पता था क्या आमिर खान को? नो सर। हाँ, तो वो क्या करते गया, ग्रुप करते गया, क्लस्टर करते गया, एंड अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर क्लस्टरिंग ही ट्राई टू गेन द नॉलेज, he tried to learn something from that particular data according to that particular clustering of data. So this is the example of unsupervised learning. The same way you can learn your machine, means in that particular condition you don't know what is the input, what is the output, but at least you are trying to cluster the data by using the algorithm. अभी कौन से भी क्लासिफिकेशन में, दैट इज सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रेनफोर्स लर्निंग है, उसमें आपको पहले क्या बनाना पड़ता है, मॉडल बनाना पड़ता है बाय यूजिंग अ एल्गोरिथम, बाय यूजिंग द एल्गोरिथम। जैसे कि सुपरवाइज लर्निंग में हमें क्या किया, एक एल्गोरिथम बनाया, एक मॉडल बनाया। अभी मॉडल किसके ऊपर से बनाया हमने, प्रीवियस डेटा के ऊपर से, मीन्स ट्रेनिंग डेटा के ऊपर से, हमारे सब नया इनपुट आता है, नया डेटा आता है तो हम उसका आंसर दे सकते हैं। सो इन एवरी लर्निंग, वेदर इट इज अ सुपरवाइज लर्निंग, वेदर इट इज अनसुपरवाइज लर्निंग और वेदर इट इज reinforcement learning, you have to have a particular algorithm. So unsupervised learning में के मीन algorithm यूज होता है। कौन सा होता है, के मीन algorithm. Then third we have seen that is reinforcement learning. So यहाँ पे क्या होता है, इसमें आपको रिवार्ड मिलते हैं, देर इज सम पॉलिसी, सो देर इज अ एजेंट, मीन्स फ्रॉम दैट एनवायरमेंट यू हैव टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम है, हाउ वी कैन गेट द नॉलेज, आवर एजेंट मीन्स आवर आइज कैन टेक the knowledge from the environment. According to that particular environment we can have that particular action, है क्या नहीं? इसमें क्या होता है, रिवार्ड होता है, उसमें कुछ रिवार्ड होते हैं, कुछ पॉइंट होते हैं। सो दिस टाइप ऑफ एल्गोरिथम वी आर यूज इन द गेम्स आल्सो। आपको मैं एग्जांपल बता सकता हूँ, अगेन द एग्जांपल इन पीके, है क्या नहीं? पीके में अभी क्या होता है, आमिर खान क्या करता है, जो ए लेने जाता है, वो क्या गाजर रहता है वहाँ पे शायद, बराबर ना, वो एक आदमी नोट देता है महात्मा गांधी की, आपको सीन याद है? क्या सीन है वो? केले या गाजर लेता है वो, 10-20 रुपए की नोट देता है कुछ, तभी उसके ऊपर किसका फोटो रहता है, महात्मा गांधी का, हमारे। तो उसको लगता है ये महात्मा गांधी का फोटो देखकर भी क्या होता है, हमें रिवार्ड मिलता है, मीन्स वो केले खरीद सकता है या वो गाजर खरीद सकता है, एम आई राइट? है क्या कोई वहां पे? सुचिता, ईशिता? यस Yes, सर, sir. यस सर। हाँ हाँ सर। हाँ। तो उसे लगता है भाई, मीन्स ही कैन टेक अ एक्शन। वो देखता है भाई लोग ये कुछ तभी ये कागज का टुकड़ा लेके जाते हैं, उसके ऊपर वो महात्मा गांधी का फोटो है, अगर वो हम फोटो देते हैं उस आदमी को तो उससे हमें रिवार्ड मिलता है, मीन्स उससे हम कुछ ले सकते हैं। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ रीएनफोर्समेंट। बट वो क्या करता है, फिर सारे जगह से वो महात्मा गांधी के ये लाता है, क्या लाता है, फोटो इकट्ठा Photos. हाँ फोटो लाता है और उसको देता है, जो गाजर बेचता है या केले बेचता है, तो उसको देता नहीं रिवार्ड। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं है, वो नोट नहीं थी। सो दिस इज द टाइप ऑफ रीएनफोर्समेंट लर्निंग, मीन्स उस फोटो की वैल्यू कहाँ पे है, means that particular agent have to get the information from the environment, and according to that environment what he get the input from that environment, he has take the action. So there is the different state and the reward. That particular agent will get the have the different state and have the different reward. So
this is a Q learning algorithm is used to gain the knowledge or to learn from that particular environment. So we use this type of algorithm in particular games. जैसे कि कुछ गेम्स रहते हैं, जैसे कि चेस होता है ऑनलाइन, चेस चेस होता है या कुछ ऑनलाइन बहुत सारे गेम होते हैं, उसमें आपको पॉइंट मिलते हैं। तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, क्यू लर्निंग एल्गोरिथम यूज करके यू आर ट्राइंग टू डेवलप दिस पर्टिकुलर मीन्स machine which will play and it will have particular points means in the form of rewards। माइनस भी पॉइंट हो सकते हैं, प्लस भी पॉइंट हो सकते हैं। जैसे कि आप चेस खेलते हो अपने कंप्यूटर के ऊपर या मोबाइल के ऊपर, या कुछ फुटबॉल खेलते हो कंप्यूटर के ऊपर या अपने मोबाइल के ऊपर, तो वहाँ पे आपको पॉइंट मिल जाते हैं, गोल करने के बाद पॉइंट होता है। सो फॉर दैट पर्पज यू हैव टू डेवलप अ पर्टिकुलर एल्गोरिथम, you have to put the knowledge according to that particular environment in that particular machine and it will work, or by using that particular algorithm it will work. Understood? That is a reinforcement learning. Reinforcement learning. Next हमने देखा सुपरवाइज लर्निंग के दो टाइप है, दैट इज रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन। हमने यहाँ पे एग्जांपल भी लिया था हाउ टू कैलकुलेट द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रियल स्टेट्स, या सीन अनसुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज, रेनफोर्स लर्निंग। सो why there is a purpose of machine learning? क्या पर्पज है मशीन लर्निंग का? हमने ये भी देखा इंडक्टिव लर्निंग। इंडक्टिव लर्निंग में क्या होता है, लर्न बाय इंडक्शन। सो लर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एग्जांपल। सो इन इंडक्टिव लर्निंग एल्गोरिथम is an iterative and inductive machine learning algorithm which is used for generating a set of classification rules. Means you have the different classification rules according to your data, you can make the rule. So which produce a rule of in the form of if then for set of example, producing rule at each iteration and appending to the set of rule. तो बेसिक आइडिया क्या है, आपको डेटा से क्या करना पड़ेगा, एक रूल बनाना पड़ेगा, और उस रूल से अगर कुछ नया डेटा आता है, so you can have the output of that particular new data, or you can have the solution of that particular new data. So there are basically two methods for knowledge extraction, firstly from domain expert and then with the machine learning. So how you can learn by this inductive learning? First from the domain expert and then with the machine learning. For very large amount of data, the domain experts are not very useful and reliable, so we move forward the machine learning approach to this work. So to use the machine learning, one method is to be replicate the expert logic is the form of algorithm, but this work is very tedious and time making expensive. So it makes a particular strategy. So how that particular inductive learning algorithm works. So general requirement that start of the algorithm, list the example in the form of tables where each row correspond to an example and each column contain the attributes. Create a set of training example. जैसे कि हम यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने कुछ रूल बनाएंगे, तो कुछ नया डेटा आता है, अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर रूल में बैठता है, तो आप यू कैन टेक अ डिसीजन. So this is the showing example use of ILA, inductive learning algorithm. Suppose an example set having the attribute place, type, weather, location, decision and 7 example. Our task is to generate the set of rules that under what condition what is the decision. अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, कौन से कंडीशन के ऊपर हमारा डिसीजन यस या नो होगा.
है क्या नहीं, हमें डिसीजन लेना है यस या नो। डिसीजन क्या हो सकता है, बारिश आ सकती है या नहीं आ सकती, या कौन सा भी डिसीजन हो सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर रूल यू हैव टू टेक द डिसीजन। अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल सेट किया है, जैसे कि प्लेस टाइप हिली प्लेस है, वेदर विंटर है, लोकेशन कुलू है, तो डिसीजन एस होना चाहिए। ठीक है, प्लेस टाइप माउंटेन है, विंडी है, मुंबई है, डिसीजन क्या होना चाहिए, नो होना चाहिए। सो दिस आर द एग्जाम्पल। प्लेस माउंटेन है, विंडी है, शिमला है, यस है। बीच है, विंडी है, मुंबई है, नो है। बीच है, वाम है, गोवा है, यस है। सो हमें डिसीजन लेना है। अभी डिसीजन किसका है ये, बारिश का भी हो सकता है या कोई अदर एनवायरनमेंट के बारे में भी हो सकता है, यस या नो। सो हियर आपने यहाँ पे क्या किया है, रूल सेट किया है। तो हमने यहाँ पे सेट बनाया, सबसेट 1 हिली विंटर कुलू यस। यस यस कौन से है, हिली विंटर कुलू यस। माउंटेन विंडी शिमला यस। बीच वार्म गोवा यस। बीच वार्म शिमला यस। So this is place type, weather, location and your decision. अब सबसेट 2, अभी सबसेट 2 में क्या आ गया, हमने ये हमारे सारे एग्जाम्पल थे, तो हमने क्या कर दिया, उसके सेट किया, उसका क्लासिफिकेशन किया। भाई यस आंसर किसका आता है, डिसीजन किसका यस 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 आता है, ठीक है, नो किसका डिसीजन आता है। सो वी हैव मेक द क्लासिफिकेशन, वी हैव मेक द सबसेट ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसीजन। जिसका यस है उसको अलग उसका सबसेट बनाया, जिसका नो है उसका अलग सबसेट बनाया। सो फाइनली वी कैन मेक अ रूल। अभी नो कौन सा है, माउंटेन विंडी मुंबई नो, बीच विंडी मुंबई नो, बीच विंडी गोवा नो। अभी इस ऊपर के इस डेटा के ऊपर से हम क्या बना सकते हैं, हम रूल बना सकते हैं, रूल सेट बना सकते हैं। रूल 1, इफ द वेदर इज वार्म देन द डिसीजन इज यस। अंडरस्टूड। अगर आपका वेदर वार्म है देन आपका डिसीजन क्या आना चाहिए, यस आना चाहिए। इफ द प्लेस इज हिली देन योर डिसीजन इज यस। इफ योर लोकेशन इज शिमला देन डिसीजन इज यस। इफ योर लोकेशन इज मुंबई देन डिसीजन इज नो। If the place type is beach and the weather is windy, then the decision is no. So from this type of example, you can set the subset, and according to that particular example, according to that particular training data, you can make the algorithm, you can make the rule, and if new data comes, you can make a decision. This is the inductive type of learning. Understood this? Yes. Yes, sir. Dhanasri, Yes, sir. समझ में आ गया ना आपको, है क्या नहीं। हमने यहाँ पे क्या किया, आपके पास ऑलरेडी डेटा था, जिसका इनपुट आपको पता था, उसका आउटपुट भी आपको पता था, और यहाँ पे क्या किया आपने, उस तरह से एक एल्गोरिथम बनाया या सेट ऑफ रूल बनाया। तो कुछ भी नया डेटा आता है तो आप उसका डिसीजन बता सकते हैं, ये हाँ है या नहीं है। सो दिस वे यू कैन लर्न दैट पर्टिकुलर, योर मशीन विल लर्न। अंडरस्टूड? दैट इज ILA algorithm, inductive type of learning, inductive learning algorithm. Understood? Then learning decision tree. So a decision tree is a simple representation of the particular classification, or it is a simple representation for classifying example. So decision tree learning is one of the most successful technique for the supervised classification learning. So for the supervised learning you can have this type of decision tree. You can put your data into the decision tree whose input and output you have known, and you can have that particular classification, and you can make that particular class. A decision tree or a classification tree is the tree in which each internal, that is a non-leaf,
node is labeled with an input feature. The arc coming from the node labeled with the feature are labeled with each other of the possible value of that particular feature. So each leaf of the tree is labeled with the class or the probability distribution over that particular class. So आप यहाँ पे देखिए सो यहाँ पे जो आर्क दिख रहा है आपको दैट करस्पॉन्डेंट टू द वैल्यू ऑफ द एग्जाम्पल फॉर दैट फीचर इज फॉलोड when the leaf is reached the classification corresponding to that leaf. So here are two decision tree length, long, short, long skips, short thread, new reads, follow up, author, unknown skip, known read, length, long, skip, short, reads with probability 0.082. So this particular decision tree, you can have what type of action can user can do. So this way you can make a decision tree and reach at the goal or gain the particular knowledge. अभी यहाँ पे लेंथ है, उसकी लेंथ शॉर्ट है या लॉन्ग है. सो अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर लेंथ हाउ द पर्टिकुलर यूजर विल टेक द एक्शन. सो लॉन्ग है तो स्किप करो, शॉर्ट है तो थ्रेड, थ्रेड में कौन सा है, न्यू है तो रीड करो, फॉलो अप है तो ऑथर. सो दिस इज द टाइप ऑफ decision tree, and this particular decision tree type of decision tree is useful for in a supervised learning. So it will give you the probability. The tree on the right makes the probabilities prediction when the length is short. In this case it predicts the reads with the probability 0.82 and so keeps the probability 0.18 mapped into the set of rule with each leaf. So this way also you can have the particular decision tree, how the particular user can work or have the particular decision. So this way also you can get the knowledge by using the decision tree and having the probability of that particular action. So this type of particular decision tree you are going to use in the supervised type of learning. Okay, so today we will stop here. Tomorrow we have we will meet at कब है हमारा लेक्चर? टुमारो 10 बजे है शायद, आई थिंक सो. सो टुडे वी विल स्टॉप हियर. झालं रे, एक्झिक्यूट झालं बरं का आत्ता. 6 लागेल, 6:15 झाले, 6:20 झाले, आत्ताच एक्झिक्यूट झालं बघा. विकायचं तुम्ही कोणता. सो वी विल स्टॉप हियर. ओके.